Hello everyone and welcome you all for today's discussion. Today we are going to discuss very important topic. आज हम longitude and latitude के बारे में बात करेंगे जो कि वेरी वेरी important topic फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि अभी आने वाला है प्रीलिम एग्जामिनेशन दैट विल बी हेल्ड इन मई में होने वाला है। तो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ग्लोबल जियोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज बाय यूजिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यू कैन फाइंड आउट व्हाट हाउ यू कैन डिवाइड होल ऑफ द ग्लोब। पूरे ग्लोब को हम पर्स में कैसे डिवाइड करते हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, एवरीथिंग वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, आसानी से समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम जो हमारा गूगल मैप कैसे काम करता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बेसिस पर भी काम करता है, तो वो हम आज जानेंगे यहाँ पर। एंड बहुत सारे जो लोकेशंस होते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं, जैसे कि आजकल तेहरान एंड ईरान एंड तेल अवीव के बारे में डिस्कशन हो रहा है, डियागो गार्सिया, किस तरीके से हम वहाँ पर लोकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्लोबल मैप। दैट्स दिस टॉपिक is very important from geographical point of view, from the current affairs point of view, from political point of view, because whatever happening जो कि आजकल नॉर्थ ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल एंड उसमें बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व है। इवन जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं वो सारे कंट्रीज के जुड़े होते हैं, इंडिया का भी जुड़ा, क्योंकि तेल का जो एम्बार्गो है, क्योंकि वहीं से जो हार्मुज जो जल वो स्टेट है जहाँ से समुद्र से जहाज गुजरते हैं वो इस समय ब्लॉक हैं, तो तेल नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इसका किस तरीके से इन पॉइंट्स को, इन लोकेशंस को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद ड्रा because we know that earth is inclined from the vertical axis and it rotates like this rotation of the earth, and it also rotate around the sun. So we are not focusing on how it rotate on about the sun, but it rotate about from west to east. Now we draw longitude lines and latitude lines. So we use different colors. Let us draw this line green. These are green lines or latitude lines. So let us define here 0, this is 90, 90, 75, 50, 45, 30, 15 and 0. 0, 15 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree and 90. Because we divide north south, because the whole of the globe, because you know sphere can be divided, पूरे स्फीयर को 360 डिग्री, पूरे स्फीयर में 360 डिग्री, पूरा सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो फ्रॉम जीरो टू नॉर्थ एंड जीरो टू साउथ 180, बट वी आर सीइंग ओनली वन पार्ट एंड बैक साइड it can be divided into 360. Same time we can divide by using latitude lines. These are latitude lines and now we divide it by longitude lines. So these are longitude lines. Let us take another color by dotted lines. We show by dotted lines. These are longitude lines, and one is from here. This is a grid. Same we can divide longitude lines like these are longitude lines. Each longitude, between two longitude there is a 15 degree difference. So it is equal to 1 hour. It is equal to 15 degree equivalent to 1 hour. 15 degree is equal to 1 hour. So now take it from 0, 15, 30, 45, 60, 75. One line I think we must show here. So here 15 degree, 30, 45, 50, 75, 90 and beyond 90. So these are longitude lines, and dotted lines, yellow lines are longitude lines, and longitude lines divide the globe in vertical axis, about vertical axis, and these are vertical lines, and these are latitude lines. Green lines are latitude lines. These are just to cut this sphere. Suppose it is solid sphere in pieces of the disc.
So these lines, along these lines, you can see time axis. This is a prime meridian 00 line, prime meridian 00 lines, and beyond this line, here from we move a 0 to left and 0 to right. This is suppose about this axis, vertical axis. It is a prime meridian, and time is divided on. If we move east, that west to this line, 15 degree equal to 1 hour. Here 15 degree equal to 1 hour. So whole of the globe can be divided into 360 degree means 24 hours. 360 by 15 equal to 24 hours. So 15 degree equal to 1 hour. When we move from this prime meridian to west, 1 hour equal to 1 hour equal 15 degree means the time will decrease. Here, if you move east to the prime meridian, that is also known as a Greenwich Mean GMT line. GMT, Greenwich Mean Time. This is the axis. This is a prime meridian about which time zone is divided. If you move towards this line, then towards the west and towards east, each 15 degree equal to 1 hour decrease, and each 15 degree equal to 1 hour increase if you move east to the prime meridian. मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम के अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं तो 1 घंटा बढ़ेगा, वेस्ट में जाते हैं तो 1 घंटा घटेगा. तो इस तरीके से हम कुछ लोकेशन को अगर हम दिखा दें तो कुछ समझ में आएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं. इफ इज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज जो हमने ड्रा किया है बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर लाइन्स ड्रॉन लाइक दिस. ये लाइन ऐसे ही ड्रा होती हैं. These are known as latitude. Green line are known as latitude, and yellow lines are known as longitude and latitude. So you can locate any position. Suppose we want to locate Delhi. Delhi कहाँ मिलेगा हमको? 26 degree east and 72.21 degree. First is latitude and second one is longitude. So each here you can say 15 degree here, 15, 30, 45, and so 15 degree means 26. Delhi lies in, Delhi position is 26.61 degree north, that is latitude, and 72.21 degree east, that is longitude. East means this direction, and ईस्ट और वेस्ट, इधर ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा. तो ईस्ट नॉर्थ मीन्स इधर नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा. इधर यू गो फ्रॉम 0 to south and 0 to north. So 26.6 degree north. So here you see the 15 degree and 30 degree. Between it there is a you can divide into 3 point, 15 to 1 and 3 point. Divide into the 15, 20, 25. So this point will be like this. You can draw another line green here like this one. You can locate Delhi and 72.21 degree east. So this is 75. So it will be like this. Your point will be here. Delhi will be like here because it will be around 72. So Delhi, New Delhi. This is a New Delhi, ND, New Delhi. And then Kolkata, Kolkata position. Kolkata 22.57 and 88.36. So 22.5 again. This was 15, 20 and 25. So it will be like here 22. 22 you move like this, and 70 then 88. 88 you will find here like this. This is a Kolkata. This is a Kolkata. Another point, Kolkata. And then Bombay, 19.09. Bombay means Mumbai. Bombay means Mumbai. 19.09. 19.09 north and 72.88, around 73 east. This is Bombay. 19.09, 15 and 20, 19.09 will be like here, and 72 point. So Bombay will be here, around Bombay position here. You see here Bombay. This is Bombay. B. Then
Madras 13.08. 13.08 means 15 here. 13.08 15 से कम है ये. 13.08 line, this line, and 80.27. So 80.27 means this is you are reaching here. Madras M. Madras. So these are positions. Colombo position is 6.93. 6.93 here divided into three parts. 5, 10, 15. 6.93. 6.93 and 79 point around here. This is a Colombo. Kathmandu 27.72. Kathmandu 27 points. So this is a way you can point. This is I think we have to see another cities away from India. इंडिया से दो को देखते हैं. इस्लामाबाद 37.72. इस्लामाबाद 37. It is the capital of the Pakistan. So Islamabad 37.72. This is 30 and 35 and for this 30, 35, 30 to 45, 30, 35, 40, 45. So here 37.72, 37.72 and 73. 37.72 and 73. This is 75 line, 73. So here you will say Islamabad. This is Islamabad. So this is a way you can see how these locations are there. Islamabad. Then coming to Kabul. Kabul is a capital of the Afghanistan. So here Kabul 34.53. 34.53 north. 34.53 north, around 35. 34.53 north and 69.17. 69.17. 60 line is here. 69.17. 69 around 70. So here you see Kabul. I think position of Kabul is I think away from Pakistan. So I think this data is not correct given by the I have find it from Google से निकाला है. तो इस्लामाबाद के ऊपर आना चाहिए काबुल. हम अगर इसको दोबारा देखेंगे. नेक्स्ट वी सी हियर तेहरान पोजीशन क्या 35.67 नॉर्थ. 35.67 नॉर्थ. 35.67 नॉर्थ and 51.39. 35.17. 35.43 तेहरान की पोजीशन है. 35.67. तो 30 this is 15, 30, 35.67 here and 69.72. 69.72 here. These are very because in the locations are not very far because in degrees you know 15 degree equal to 1 hour. So almost you see that whole of India you can see between 70 to 80 and in 15 degree you can locate whole of India. So in terms of जो डिग्रीज होते हैं 15 डिग्री बहुत बड़ा एरिया होता है. इसीलिए सब पास काबुल, तेहरान, ईरान सब पास में ही आ रहे हैं. ज़्यादा दूरी इनमें नहीं होती. अक्सर में दूरी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन डिग्रीज में अगर हम ग्लोब में डिफाइन करते हैं तो बहुत पास में वैल्यू जाती है. अगर कोई दूर की सिटी लेते हैं तेल अवीव, ये भी पास में आ जाएगा. तेल अवीव जो है 32.048. 32.0 ये तेल अवीव का पोजीशन हो गया. यहाँ से 32 15 और 30 यहाँ पर हो गया. 15 और 30 32 के पास यहीं पर आएगा कहीं 32 एंड 34.78 ईस्ट. तो ये तो 34.78 ईस्ट ये 30 का हो गया. यहाँ पर कहीं आ जाएगा तेल अवीव इजराइल का राजधानी जो आजकल बहुत चर्चा में है तेल अवीव. तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है कि इस तरीके से हम ग्लोब में हम पोजीशंस को लोकेट कर सकते हैं. उनको हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड निकाल के आसानी से उनको हम मैप में डिफाइन कर सकते हैं. इस तरीके से आसानी से हम उनको समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है ग्लोब में. फ्रंट में आ रहे हैं या घुमाने पर आएंगे क्योंकि अगर 90 से ऊपर हो गया तो ये अपोजिट साइड में चला जाएगा. और दूसरा कराकस लेते हैं. ये कराकस हम क्यों ले रहे हैं? अभी वेनेजुएला की राजधानी आप जानते हैं कराकस क्या है, राजधानी कैपिटल ऑफ द वेनेजुएला. और अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि अमेरिका ने एक कमांडो एक्शन करा के वहाँ के राष्ट्रपति और उनके वाइफ को वहाँ से एयरलिफ्ट कर लिया था बाय यूजिंग मैरीन कमांडो एक्शन.
तो इसलिए वो काफ़ी बर्निंग पॉइंट है, काफ़ी चर्चा का पॉइंट है। क्यों लिया, क्या पॉलिटिकल कंपल्सन थे, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्निंग पॉइंट है। ये मतलब काफ़ी चर्चा में है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कराकस को लोकेट करके कहाँ पर है ये, वेनेजुएला एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। और उसकी पोजीशन क्या होगी, तो वेनेजुएला की पोजीशन है 10.4 नॉर्थ, 10.4 तो 5 0 5 10 10 यहाँ पर आएगा, 10 नॉर्थ में होगी। ये लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ये लाइन नॉर्थ में इतना हो गया 10.48 नॉर्थ एंड 56.9 वेस्ट। अब हम वेस्ट में जाएंगे 50, अब ये हमारा कितना हो गया, दैट इज ये 15 डिग्री, 15 30 45 60 एंड 75, यहाँ कहीं आएगा। तो 50 एंड 56.9 करीब करीब ये पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। दिस इज ए कराकस, दिस इज कैपिटल ऑफ द वेनेजुएला। कराकस से अगर हम दिल्ली को जोड़ें तो यू कैन सी दिस इज लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ कराकस टू दिल्ली। अगर सीधे हम फ्लाइट से जाएं तो कराकस टू दिल्ली ये लाइन पड़ेगी आपको, कराकस दिल्ली। कराकस इज ए कैपिटल ऑफ द कैपिटल। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट पड़ रहा है अभी भी नॉर्थ ये ग्लोब में आ रहा है, नॉर्थ एंड साउथ दो हम डिवाइड कर सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ ग्लोब में। तो जीरो से ऊपर जो होगा नॉर्थ होगा, जीरो से नीचे अगर जाएंगे तो वो साउथ हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा, अगर हम एक पॉइंट और डिफाइन करें डरबन, लेकिन हम ये यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डरबन डिफाइन कर रहे हैं हमें पास पॉइंट। अगर हम डिफाइन करें लंदन, लंदन कहाँ मिलेगा हमको, लंदन 51.51 नॉर्थ, 51.51 नॉर्थ, 15 30 45 एंड 50 60। तो 45 के बीच में 3 लाइन, 2 डिवाइड करिए 50, ये 50 हो गया एंड 51 आसपास यहीं पर आएगा ये। दिस इज सपोज ये हम एक फ्री हैंड स्केचिंग करें तो 50 ये लाइन ये नॉर्थ हो गया, 51.51 एंड 0.13 थोड़ा सा ये पास में, ये ग्रीनविच मीन टाइम के पास, लंदन के पास से गुजरती है, ये लंदन के पास से गुजरती है, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम पढ़ ही पड़ता है। स्टैंडर्ड 0.1 डिग्री नॉर्थ को लोकेट ही नहीं कर पाए, ये सीधे सीधे आपको पड़ेगा जीएमटी लाइन पर, लंदन लंदन जीएमटी लाइन पर ही पड़ेगा। ग्रीनविच में स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है लंदन से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए ग्रीनविच मेन टाइम पर ही पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन करें न्यूयॉर्क 40.41 नॉर्थ, 40.41 नॉर्थ। तो ये 50 30 30 35 40 ये लाइन ड्रा कर लीजिए, यहां पर कहीं पड़ेगा एंड 74.01 वेस्ट, 75 ये लाइन यहाँ गुजर रही है, तो ये करीब यहाँ पर पड़ेगा न्यूयॉर्क। दिस इज न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क दिस इज ए इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन वेरी पास में, ऑलमोस्ट ट्विन सिटी कह सकते हो। वाशिंगटन इज कैपिटल ऑफ द अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यूएसए, एंड न्यूयॉर्क जो इसकी इकोनॉमिक सिटी है, जो बिजनेस सेंटर है न्यूयॉर्क, बहुत बड़ा है, ये बंदरगाह है, एयरपोर्ट भी यहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क ज़्यादातर फ्लाइटें लंदन न्यूयॉर्क ही जाती हैं, वाशिंगटन नहीं जाती हैं फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो वाशिंगटन जाने वाली फ्लाइट्स होती हैं वो न्यूयॉर्क ही जाती हैं, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन बिल्कुल पास में है। तो मेनली हम ये न्यूयॉर्क यहाँ पर पड़ेगा, नॉर्थ ग्लोब में ही पड़ रहा है ये भी, क्योंकि हमने साउथ ग्लोब वाले सिटी लिए ही नहीं है यहाँ पर। अगर हम लेंगे तो फिर हमें उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर नोट नहीं किया है। नेक्स्ट है मास्को। मास्को भी आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि दिस इज सुपर पावर है एंड 4-5 साल से यूक्रेन के साथ वार में है, एंड यहाँ पे ईरान के साथ जो वार हो रहा है इसराइल के बीच में, वहाँ पर भी उसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है एंड उसके एलिज हैं, दूसरी तरफ तेहरान ईरान के साथ, मास्को रसिया भी है। तो मास्को की पोजीशन भी, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करते हैं तो मास्को के बगैर तो संभव ही नहीं है, रसिया के बगैर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं करते। रसिया चाइना दीज आर मेजर प्लेयर्स। तो हम मास्को की पोजीशन डिफाइन करेंगे, मास्को है 19.43 नॉर्थ, 19.43 नॉर्थ। अच्छा, मास्को पोजीशन है 55.75 नॉर्थ, ये पोजीशन करीब यहाँ पर पड़ेगी 55.75 नॉर्थ। ये हम ले लेते हैं यूआई लाइन, लैटिट्यूड लाइन,
एंड 37.61 ईस्ट, 37.61 ईस्ट। तो 30 ये हमारा 15-30 लाइन हो गया 40, 37 पॉइंट ये जो यहाँ पर जाके पड़ेगा 37, ये लाइन ये पड़ेगा यहाँ पर मॉस्को। मॉस्को एक सिटी और डिफाइन करते हैं, मैक्सिको। मैक्सिको क्या है? मैक्सिको जो है अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है मैक्सिको। एंड मैक्सिको के बारे में जानते हो, मैक्सिको एक ऐसा कंट्री है जिसका कैपिटल भी, जिसकी राजधानी भी मैक्सिको सिटी है। दुनिया में दो ही कंट्री है, एक मैक्सिको, दूसरा है सिंगापुर। इनके देश के नाम, उनकी राजधानी के नाम सेम है। एंड यू नो दैट मैक्सिको जो है चांदी का बहुत बड़ा, मोस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्वर। तो मैक्सिको देखिए कहाँ पर है पड़ेगा। मैक्सिको की जो पोजीशन है वो 19.43 नॉर्थ है, 19.43, ऑलमोस्ट ये लाइन पड़ेगी जाके 19.43 नॉर्थ, 19.43 नॉर्थ ये, एंड 99.13। तो 99 यहाँ पर 99 वाली लाइन यहाँ पर 90 लाइन हो जाएगी, यहाँ पर जाके कहीं उल्टा जाके ये हमने ये बताया था कौन सी 19 पॉइंट, यहाँ पर जाके रिवर्स में जाके मैक्सिको पड़ेगा। थोड़ा सा 99 पर जा रहा है ना, तो मैक्सिको थोड़ा सा दूर जा रहा है। जो हम डिफाइन करें 90 तक डिफाइन किया, इसके बाद 15 डिग्री और जाएंगे, 10 डिग्री और जाएंगे 99 पॉइंट। तो अगर हम इस ग्लोब को घुमा दें तो उस साइड में पड़ेगा मैक्सिको। तो हम मैक्सिको को यहाँ पर मान लीजिए ऐसे जाके डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इज हाउ वी लोकेट। अगर हम डिफाइन करना चाहें, डरबन है, केप टाउन है, तो जीरो से यहाँ पे नीचे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत दूर जाएंगे, तो न्यूजीलैंड आप यहाँ पर घुमाना पड़ेगा इसको। जापान को डिफाइन नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि ये ग्लोब घुमाना पड़ेगा तब उसकी पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे। हाँ, डरबन वगैरह है तो डरबन की पोजीशन कहीं यहाँ पर कहीं आसपास आएगी। और डियागो गार्सिया वगैरह है जहाँ पर अभी ईरान ने मिसाइल से लॉन्च किया था। इट इज ए वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक डिफेंस लोकेशन ऑफ द यूएसए एंड ब्रिटेन, जहाँ पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया, जो कि ईरान से 4000 किलोमीटर अवे है। तो ये चीज अभी चर्चा में है। डियागो गार्सिया, आपको मालूम होना चाहिए, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में मॉरिशस के बगल में एक द्वीप, छोटा सा द्वीप है, जिसको मॉरिशस ने अमेरिका को दे दिया था वहाँ अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए। तो वहाँ पर उसका बहुत बड़ा डिफेंस अड्डा है, जहाँ से बड़े बड़े प्लेन जो होते हैं वो उड़ान भरते तेहरान वगैरह में जाकर अटैक करते ईरान में। तो वहां पर उसने जो अटैक किया था, तो वो पोजीशन करीब करीब यहाँ पर आके पड़ेगी डियागो गार्सिया। हम लोकेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसके पॉइंट नहीं है। क्योंकि जब भी आप गूगल से आप जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो डिफरेंट सिटी का पोजीशन लोकेट करते हैं, तो वो भी इसी से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से कोई सैटेलाइट के थ्रू फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, कार के थ्रू या प्लेन के थ्रू। तो विदाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मिसाइल भी काम नहीं करे। एवरीथिंग वर्क, जो प्लेन का जो नेविगेशन होता है वो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ही कवर होता है। उसको पोजीशंस को अब अगर हमें जाना है तो इसी इन्हीं लाइंस के थ्रू जाएंगे। नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया। नॉर्थ एंड साउथ, ये जो लैटिट्यूड लाइंस होंगी, नॉर्थ होंगी, साउथ होंगी, ईस्ट होंगी, वेस्ट होंगे। इन्हीं लोकेशंस को फॉलो करते हुए वी कैन रीच एनी लोकेशन। अदरवाइज हम इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा ये ग्लोब होता है, इतना बड़ा विशाल इसका है, तो वहां पर हम विदाउट इस तरीके के लोकेशन की वजह पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दिस डिस्कशन। आई थिंक यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीज शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड मेक ए कमेंट सो दैट आई कैन मोटिवेट टू इसी तरीके के और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।